Everyone, please give a big hand to Dr. S. Kumar. Sir, we welcome you. And I also would like to invite our Honorable Principal Sir, Dr. Inder Malik Sir, to extend warm greetings with floral welcome to Dr. S. Kumar. Dr. S. Kumar is a well-known scientist, PhD, D-Literature Triple Gold Medalist who has dedicated his life towards welfare of mankind. Now that we have set the stage with some great energy, let's get started on our exploration of a healthier lifestyle, and we are really very excited to welcome Dr. S. Kumar. Please give him a big round of applause, who will share his valuable insights about healthier lifestyle. Sir, mic is all yours now. So here Dr. S. Kumar sir, he is a scientist. शायद आज बहुत सारे बच्चों के ड्रीम्स जाग जाएंगे उनको सुनने के बाद कि उनको भी एक साइंटिस्ट बनना चाहिए. He is a Bharat Gaurav awardee and best scientist awarded scientist who has researched on the ailments which are disturbing people from ages. हम सभी में से कितने लोग जानते हैं कि डायबिटीज नाम की कोई बीमारी होती है? आप प्लीज हाथ उठा सकते हैं. Though I know this is not a class, but let's be interactive. Okay? Yes. So almost every one of us knows there is something called as diabetes. So आज आपके सामने master of diabetes खड़े हुए हैं, and he is very well known as diabetes killer. So I would just like you to give a big round of applause because his patients call him as a diabetes killer who is helping them to come out of this ailment which is deadly in nature. Alright, so थोड़ा सा और सर के बारे में बताना चाहूँगा. इन्होंने एक बहुत ही important research करी है. Though we are working on heart health, joint health, bone health, but today's topic will be related to diabetes. So I just want to give you a background of the research which he did. There is a problem which is related to diabetes, and that is increased sugar levels. आप में से यहाँ पे कुछ लोग हैं जिनको डायबिटीज है? ओके, कुछ लोग हैं. अच्छा, आप में से कितने लोग ऐसे हैं जो जानते हैं कि डायबिटीज के कुछ ऐसे मरीज हैं जिनको आप लोग डायरेक्टली मिलते हैं या आपके फैमिली में है या आपके फ्रेंड्स हैं? ऑलमोस्ट एवरीवन, राइट? तो आज जो आपके पास टेक अवे मैसेज होने वाला है, ये मैसेज आप अपने फ्रेंड्स और फैमिली तक लेके जाएं, बिकॉज आज बहुत बड़ा खुलासा आप लोगों के सामने होने वाला है. और इस खुलासे को इस एज एन एजुकेशन प्रोग्राम हम लोग रन कर रहे हैं, और सर ने लगभग 45 साल अपनी उम्र के लगा दिए हैं इस रिसर्च के लिए, जो आज वो आपके सामने प्रेजेंट करने वाले हैं इन अ फॉर्म ऑफ अ लवली लेक्चर. इट इज गोइंग टू बी इंफॉर्मेटिव. अगर आपके हाथ में कुछ ऐसी चीज है जिस पे आप नोट डाउन कर सकें, तो आप प्लीज इंफॉर्मेशन को नोट डाउन करिएगा, बिकॉज द वर्ल्ड्स बिगेस्ट लाई इज गोइंग टू गेट एक्सपोज्ड टुडे. एंड फॉर दैट आई वुड लाइक टू हैंड ओवर द स्टेज टू डॉक्टर एस कुमार सर. Please give them a big hand. Thank you, Varun. Before we proceed further, sir, एक सा किताब आपको प्रेजेंट करना चाहता हूँ. इसके अलावा मैं ऑथर भी रहा हूँ, और इससे आपको बैकग्राउंड. इस बुक का टाइटल है यस मिल्क अब नो मिल्क. दिस बुक इज रिटन बाय मी इन 2006. 2024 में हम लोग हैं, और इसकी प्रस्तावना मनेका गांधी जी ने लिखी है. और 2011 में आई हैव द प्रिविलेज माय take my book in President Library, honored by President of India. Sir, 2 मिनट में आपसे बोलूँगा कि आप पढ़ के सुनाएं. S. Kumar has done a lot of research into the effect of milk.
in this book. Yes milk, up no milk. If doctors and influential people in society, like teachers and religious guru, take the time to read it, they will benefit their own knowledge and save thousands of lives rather than destroying them through ignorance. This is written. This is quote given by Maneka Gandhi. Second title. Okay, just no diabetic, then no diabetic. Cold hard truth about diabetes. Countless studies from scientists and doctors all over the world have proven that people with type 2 diabetes can normalize blood sugar, increase insulin sensitivity and neuropathy pain, lower risk of blindness, amputations, and be taken off all diabetic drugs and insulin injection. This is written on this book. And this book. तो आज हम बहुत शॉर्ट में हैं, तो स्पेशली डायबिटीज़ के ऊपर हम बात करना चाहेंगे, क्योंकि काफ़ी लोग यहाँ हैं, जितने लोगों को डायबिटीज़ है उन्होंने हाथ ऊपर करेंगे। गीता जी, अच्छा, कितने साल से डायबिटीज़ है आपको? रिसेंटली हुआ है। कितना दिन हो गए? 1 month। 1 month हुआ। डॉक्टर के पास गए थे तब क्या बताया डॉक्टर ने आपको? डॉक्टर ने मेडिसिन दी। कुछ टेस्ट कराए थे आपसे? हाँ जी। कौन से टेस्ट थे, कुछ याद है आपको? LFT, KFT, सारे शुगर के टेस्ट थे सारे। ये तो किडनी और इसके हो गए, लीवर के सारे टेस्ट हुए थे। शुगर थे तो हुआ ही था शुगर। शुगर कितना था आपका फास्टिंग पोस्ट में? उस टाइम तो सुबह 300 आई थी। सुबह की 300 और पोस्ट में? और बाद में मैंने नहीं करवाई। कोई बात नहीं। 3 महीने का एक एवरेज होता है HbA1c, और कुछ याद है आपको? वो भी 10 है। वो 10 है। And you had the diabetes for last 10 years. Yes, 2014 in the month of April it was diagnosed that I am Diabetic. Now, as on today, how many tests are you doing for diabetes? For whole body checkup I No, for diabetes only. only for diabetes there are 3 type of tests. Yeah. Fasting, PP and H1ABC. HbA1c. इन्होंने बताया कि फास्टिंग, पोस्ट मील और HbA1c ये 3 टेस्ट करा रहे हैं। यहाँ में से इसे कोई लोग हैं इसके बारे में भी कुछ अलग टेस्ट जानते हैं? कोई भी है? कोई नहीं है? चलिए, आपको भी किसी ने नहीं बताया तीसरा टेस्ट आज तक? I don't think so. चलो, ओके। ये सिर्फ इसलिए बताना चाहता हूँ कि चल क्या रहा है। हम लोग बहुत पढ़े लिखे हैं, हर आदमी अपने आप में एक बुलंदी में रह रहा है, बुलंदी में जी रहा है, लेकिन हमें अपने शरीर के बारे में नहीं मालूम है कि हमें क्या टेस्ट करना है, क्योंकि हम किसी के ऊपर डिपेंडेंट हैं। बराबर है? तो एक कॉमन सी चीज बता, बैठी सर आप, कोई प्रॉब्लम नहीं। एक बहुत बेसिक सी चीज मैं आपको बताना चाहूंगा। जब किसी की शुगर फर्स्ट टाइम डायग्नोस होती है, पहले 1 साल महीने पहले हुए या 10 साल पहले हुए, तो सबसे पहला जो सवाल आपके बीच जहन पे डॉक्टर पूछते हैं, जो शायद आपसे भी पूछा होगा, क्या आपके फैमिली में किसी को डायबिटीज है? पूछा है मैडम आपसे? पूछा है ना? सब सहमत है इनसे? चल, दूसरा कि आपको डायबिटीज हो गई है, आपको जिंदगी भर आपको दवाइयाँ लेना है, ठीक है? थोड़ा सा जब बात चलती है तो अगर आप नहीं लेंगे तो आपको डायबिटीज के साइड इफेक्ट्स बताए जाते हैं, आपकी आई खराब हो गई, किडनी, लीवर, ये सारी चीजें बताई जाती हैं, हम लोग घबरा जाते हैं। उसके बाद में धीरे से जब थोड़ा सा कन्वर्सेशन डॉक्टर के साथ होता है तो एक सवाल पूछा जाता, बोलते हैं उसको कि आपके बॉडी में इंसुलिन नहीं बन रही है, सही है? बराबर है? तो थोड़ा डिस्कशन आपका चलता है। फिर एक सवाल और आता है कि आपको जो पेंक्रियाज जो है कहीं काम नहीं कर रहा है, बराबर है? इसमें कोई गलत है तो हाथ उठाए कोई, सही है? बिल्कुल। ये जो जांचें हैं ये अधूरी जांचें हैं डायबिटीज की। जब आपको टेम्परेचर जब आता है तो कभी भी डॉक्टर आपके पास आएगा, थर्मामीटर से आपका टेम्परेचर देखेंगे वो, और क्रोसिन नाम की एक टैबलेट दी जाती है जिससे शुगर आपका डाउन होगा, सॉरी आपका टेम्परेचर डाउन होगा। दूसरे दिन फिर एक कंफर्मिटी टेस्ट की जाती है आपकी।
वो बुखार आपका टाइफाइड है, मलेरिया है, टीबी है या डेंगू है, और स्पेसिफिक एंटीबायोटिक देके विदिन ए स्टिपुलेटेड टाइम, within 6 months you will find that TB is no more completely cured. But when it comes to the point of diabetes, what we doctor says, by 2025 India is going to be diabetic capital of the world. और ये इतना कॉमन हो गया है कि डायबिटीज कभी ठीक नहीं होती है, डायबिटीज से आप कभी को छुटकारा मिलेगा नहीं, क्योंकि हमने पूरा जो हमारा लाइफ है उस ऐसे ही देखा है। हमारे पेरेंट्स हैं, हमारे पहचान वाले हैं, वो कभी डायबिटीज से मुक्त हुए नहीं। ऑन द कंट्री सेकेंडरी प्रॉब्लम्स में गिरते, पहले 1 टैबलेट 2 टैबलेट बढ़ती गई, उससे रिजल्ट नहीं आया, हमने इंसुलिन चालू किया, इंसुलिन बढ़ती गई, लेकिन सेकेंडरी कॉम्प्लिकेशंस, किडनी है, किसी को हार्ट का प्रॉब्लम है, किसी के आंखों का प्रॉब्लम, ये करके वो सारी चीज़ें एंड होती हैं कहीं तो भी द एंड ऑफ योर लाइफ। कहीं आपको ऐसा लग रहा है कि कहीं मेरे बात करने में कहीं विरोधाभास है, तो जरूर आप बात करेंगे मेरे से। अब साइंस जो बोल रहा है, साइंस इसकी इजाजत नहीं दे रहा है कि जो डॉक्टर बोल रहे हैं वो सच है। हमारे यहाँ जब डायबिटीज डायग्नोसिस होता है तो 3 टेस्ट, जैसे उन्होंने बताया, आपने बताया, फास्टिंग, पोस्ट मील और HbA1c, ये आपके अधूरी जांचें हैं, देयर अनकंप्लीट टेस्ट। जब डॉक्टर आपको बोलते हैं कि आपके बॉडी में इंसुलिन नहीं बन रही है, उसका टेस्ट नहीं हुआ, आपके बीटा सेल्स खराब है, उसका टेस्ट नहीं हुआ, आपकी उसकी सेंसिटिविटी कितनी है नहीं हुआ, आपके बीटा सेल का टेस्ट नहीं हुआ, तो हमने कैसे मान लिया कि हमारी चीजें खराब है? अकॉर्डिंग टू मी, जितने लोगों ने यहाँ हाथ उठाया है, I can guarantee you none of you are a diabetic person, and I will prove that. मेरे 50 क्लिनिक है भारत में, पिछले 20 साल से काम कर रहा हूँ। मेरे को आज तक ऐसा कोई पेशेंट नहीं मिला मेरे चैम्बर में जिसको डायबिटीज हो। बढ़ी हुई शुगर और डायबिटीज दोनों अलग अलग चीजें हैं, ध्यान रखिएगा, बिल्कुल अपोजिट है। इसके लिए सबसे पहले आपको टेस्ट कराना जरूरी है। इन 3 टेस्टों के अलावा एक टेस्ट होता है, देखते हैं, उसके बाद उसमें होमा आया, जिसे इंसुलिन रेजिस्टेंस बोलते हैं। इसमें आपके पेंक्रियाज में कितने बीटा सेल कार्यरत है और उसकी कार्य क्षमता कितनी है, ये उसके अंदर आता है। तीसरा एक टेस्ट होता है सी पेप्टाइड, जो शायद किसी ने नहीं सुना, पहली बार सुन रहे हैं। ये सी पेप्टाइड तभी आता है बॉडी के अंदर जब बॉडी के अंदर इंसुलिन एंडोजेनसली प्रोड्यूस होती है। ये 0.8 के ऊपर होना चाहिए। ये आप जितने भी लोग यहाँ डायबिटीज से अगर आप कराएं तो आप देखेंगे कि आपके टेस्ट ये सब नॉर्मल है। जो सी पेप्टाइड एक ऐसी टेस्ट, जैसे मैंने बताया है, जैसे ये अंगूठा मैं आपको बता रहा हूँ, ये दिस विल नेवर रिसेंबल एनीवेयर इन द वर्ल्ड विद एनीवन, सो दिस पेटेंट रिमेन्स विद द गॉड। आप इसको डुप्लीकेट नहीं बना सकते हैं। आप चांद पे चले जाइए, भगवान बोल रहे हैं, पढ़ लीजिए, आप नासा में चले जाइए, बेस्ट साइंटिस्ट बन जाइए, आप इंसुलिन भी लेबोरेटरी में बना लीजिए, लेकिन सी पेप्टाइड आप लेबोरेटरी में नहीं बना सकते। दिस इज द फंडामेंटल डिफरेंस विद द डायबिटिक एंड नॉन डायबिटिक। अगर हमारे बॉडी में इंसुलिन बन रही है, सी पेप्टाइड है, तो साइंस को डायबिटीज बोलने का अधिकार नहीं है, ना ही मेडिकल फील्ड में। ये सारे टेस्ट मेडिकल बुक्स में अवेलेबल हैं, सारे लेबोरेटरीज इसको करती हैं, लेकिन अगर बोलेंगे तो करेंगे। जैसे मैंने बोला कि मेरे यहाँ पिछले 20 साल से लोग, हजारों पेशेंट्स आए हुए हैं, लेकिन आई येट टू फाइंड अ पर्सन हु इज डायबिटिक इन माय चैम्बर। सो जो टेस्ट हैं बहुत इंपॉर्टेंट है। शुगर और डायबिटीज को क्लब कर दिया गया है सैंडविच के जैसे, उनको लगता है ये तो एक ही चीज है,
डायबिटीज और शुगर दोनों अलग अलग चीजें। शुगर आपके बॉडी में बनेगी ही, आप ध्यान रखिएगा, इट्स अ सोर्स ऑफ एनर्जी। मैं हमेशा अपने लेक्चर में कहता हूं कि देखिए, सूरज उगेगा डूबेगा, चांद उगेगा डूबेगा, बरसात गिरेगी पानी रुकेगा। वैसे ही आपके शरीर में शुगर तब से बन रही है आदि मानव काल से, क्योंकि वो इज अ सोर्स ऑफ आवर एनर्जी। अगर शुगर हमारी नहीं बनेगी तो वी कैन नॉट डू आवर मेटाबॉलिक, हमारे मेटाबॉलिक प्रोसेस है वो टाइम रुक जाएगी। तो हम बताइए, पानी कब पीते हैं? जब हमें प्यास लगती है। हम खाना तब खाते हैं जब हमको भूख लगेगी। हम गाड़ी में पेट्रोल तब डालते हैं जब हमारा पेट्रोल गाड़ी में खत्म हो। तो फॉर इंसुलिन हम क्यों लें? अगर हमारी इंसुलिन अगर बॉडी में बन रही है, समझिए। अब हो क्या रहा है, विदाउट इससे आपको ओरल हाइपोग्लाइसेमिक टैबलेट दिए जाते हैं जिससे इंसुलिन बनती है, आपको भी मालूम है, उसके लिए दिया जा रहा है। वो एक्स्ट्रा इंसुलिन कर रहे थे, सबके बॉडी में एक्स्ट्रा इंसुलिन पाया जाता है। दिस इज नोन एज अ केस ऑफ हाइपर इंसुलिनीमिया। हाइपर इंसुलिन, डबल इंसुलिन बन गई। अब आपके बॉडी के अंदर ऑलरेडी इंसुलिन बन रही है, आप बाहर से इंसुलिन दे रहे हैं या कुछ कर रहे हैं, तो साइंस के जो स्टूडेंट्स हैं वो जानते हैं कि हमारी बॉडी जो है फॉरेन प्रोटीन एक्सेप्ट नहीं करती। इंसुलिन इज नथिंग बट इज अ प्रोटीन मॉलिक्यूल। तो एंटीजन एंटीबॉडी होता है जिससे इसको इंसुलिन रेजिस्टेंस बोला जाता है। और इंसुलिन रेजिस्टेंस में के कारण आपकी शुगर इस्तेमाल नहीं हो पाती है और वो बढ़ी हुई आती है हमेशा, और उसको डायबिटीज कहते हैं। तो मेरे वीडियोस या मेरे बुक्स में मैं कहता हूँ कि रक्त में बढ़ी हुई शुगर, फास्टिंग, ओसमील या HbA1c को डायबिटीज न समझे, जिसको आप बाय डिफॉल्ट आप समझ रहे हैं डायबिटीज। अब शुगर जैसी आपकी बॉडी में बन रही है, उसका इस्तेमाल अगर नहीं होगा तो बढ़ी हुई आएगी। फिर इसका इस्तेमाल होता कहाँ पे है? बहुत सारे साइंस स्टूडेंट्स हैं, साइंस हमारी बॉडी जो इज मेड अप ऑफ मोर देन 100 ट्रिलियन सेल्स, यानी हम दिल्ली का आधा हिस्सा अगर इकट्ठा कर ले और ईंटें निकाल लें तो शायद प्रिंसिपल सर की बॉडी में नहीं बन पाएगी। सो टीनी ईंटें दिखती हैं। सेल you can see with the only electronic microscope, you cannot just see with the naked eye। और एक सेल के अंदर there are more than 10,000 इंसुलिन रिसेप्टर, दरवाजे हैं जिसके कारण से शुगर आपकी अंदर प्रवेश करती है। अब ये इंसुलिन रेजिस्टेंस मैं बोल रहा हूँ, ये इंसुलिन रेजिस्टेंस के कारण एक तरह की उसके ऊपर एक परत बन जाती है, और उसका और एक कारण है खाने का तेल। हमारे यहाँ बचपन से हम देखते हैं जब तेल को इस्तेमाल करते हैं तो उसमें धुआं आता है, और हमें लगता है धुआं तो नॉर्मल है, कोई भी चीज़ जलेगी तो धुआं आएगा। तो एक नॉर्मल धुआं नहीं है ये, इसको मिलरेट रिएक्शन बोलते हैं। 1912 में एक साइंटिस्ट ने उसको खोज के निकाला कि ये धुआं है क्या। तो धुआं में ट्रांस फैटी एसिड्स, एक्रिलामाइड, एक्रिलामीन, एडवांस ग्लाइसेशन एंड प्रोडक्ट, ये सारे तत्व होते हैं। और आपके जो सेल वॉल है उसके हल्की सी परत आपकी बन जाती है, जिससे शुगर की एंट्री आपकी बंद हो गई। जैसे ये अभी दरवाज़ा बंद है, कोई अंदर नहीं आ सकता है। अगर दरवाज़ा खुला तो किसी की भी एंट्री हो जाएगी। तो ये मैं एक दरवाजे की बात करूँ, ऐसे मिलियंस ऑफ दरवाजे हमारे इसके अंदर है, वो बंद है बिकॉज ऑफ द ट्रांस फैटी एसिड। इसको समझने के लिए आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल दूंगा। पुराने ज़माने में हमारे जो घर होते थे उसमें एक चिमनी लगी थी जिससे धुआं पास होता था। समय के साथ विद द पैसेज ऑफ टाइम एवरीथिंग हैज चेंज। हमारी किचन एक छोटी सी रहेगी 10 बाई 10 में, और उसमें 2 बाई 1 का चूल्हा आ गया है जिसको हम लोग गैस चूल्हा बोलते हैं। अब उसके ऊपर भी छोटा सा एक चिमनी आ गई है ना, आपके घर में, सबके घर में होगी जनरली। लेकिन 3 महीने के बाद आप क्या देखती हैं, उसमें तेल टपकता है, उसको साफ करना पड़ता है। तो ये धुआं से देखिए तेल नहीं गया, लेकिन वो वेपर गई और धुएं में, तेल में कन्वर्ट हुआ। तो जिस तेल में अगर आप कोई चीज़ बना रहे हैं, सब्जियां ढोक रहे हैं, पकौड़े खा रहे हैं, पूरियाँ खा रहे हैं, वो तो डायरेक्ट आपके सेल के अंदर जा रहे हैं।
और इसी को ट्रांस फैटी एसिड्स बोलते हैं। और एक छोटी तरह की आपको ऐसा तेल चाहिए जिसमें धुआं नहीं आता है। वैसा एक तेल है, इसको बोलते हैं अल्फा कार्डियो, इसको गर्म करने के बाद धुआं नहीं आता। अब ये जो परत है, अगर इसको हमने ओपन कर दिया तो मुझे लगता है, क्या लगता है आपको कि शक्कर बढ़ी हुई रहेगी? नहीं ना, शक्कर अपने आप कम होगी, क्योंकि शक्कर आपके पास में कंटिन्यूसली बनती है, कंटिन्यूस प्रोसेस। शुगर बनती ही रहेगी आपके, आप अगर रात को सो रहे हैं तो भी बनेगी। तो अगर शक्कर आपकी रूट में बढ़ी नहीं है, HbA1c फास्टिंग पोजीशन, HbA1c भी आपका कंट्रोल आएगा। तो ऐसी अवस्था में इसको डायबिटीज कहने का अधिकार साइंस को नहीं है, नहीं मुझे है, और प्रिंसिपल साहब भी उस चीज़ से एग्री होंगे। बहुत सिंपल है, हालांकि थ्योरी बहुत लंबी है लेकिन शॉर्टकट समय कम था, बहुत सिंपल, जो भाषा आपको समझती है उस भाषा में कोशिश की है कि आप उसको समझ सके। तो दोस्तों, आप में से कोई भी डायबिटीज नहीं, किसी को डायबिटीज नहीं है। बढ़ी हुई शुगर को डायबिटीज कहना, इससे बड़ी मूर्खता शायद हमारे देश में नहीं है। आज हम लोग बोल रहे अधूरी जांचें। आपको अगर ऐसा लगता है कि आपको डायबिटीज है तो इस सारी टेस्ट आप कराएं, आप अपने डॉक्टर से मिलिए, आपके एंडोक्राइनोलॉजिस्ट से मिलिए और उनसे आप उनका ट्रीटमेंट ले सकते हैं। अगर आपको ऐसा लगता है कि ट्रीटमेंट किसी कारण से उन नहीं दे पा रहे हैं, कुछ नहीं कर पा रहे हैं, तो यहाँ पे हमारे चैम्बर है साउथ दिल्ली में, सब ए ब्लॉक में। आपको ऐसा चाहिए तो सारी इन्फॉर्मेशन आपको बाद में पसंद कर दी जाएगी। तो दोस्तों, डायबिटीज पूरी तरह अच्छी हो सकती, सो कॉल्ड डायबिटीज, सिंपल परिभाषा है, डरना नहीं है किसी को भी। आप टेस्ट कराओ, हमारे यहाँ 9 महीने से 36 महीने जो आते हैं, आपकी 10 साल हो, 15 साल हो, 25 साल हो, 31 साल हो, 40 साल हो, आप हमारे यहाँ सारे लोग ठीक होते हैं। क्योंकि जो यूटिलाइजेशन है, जो यूटिलाइजेशन पॉइंट पे पूरे वर्ल्ड में कोई काम नहीं कर रहा, हर आदमी काम कर रहा है, मेडिकल फील्ड काम कर रहा है तो इंसुलिन पे या बीटा सेल पे या फिर शुगर पे। हम लोग उस पर बिल्कुल काम नहीं कर रहे हैं, हम कर रहे हैं जो शर्करा आपकी बन रही है उसकी यूटिलाइजेशन के ऊपर। बिकॉज इट इज नॉट कॉज्ड बाय एनी ऑफ द ऑर्गेनिज्म, ये कोई बैक्टीरिया माइक्रोबैक्टीरिया से नहीं बना हुआ है, ये सिंपल पाथवे है। आप यहाँ से जा रहे हैं, शुगर ऐसी आ रही, और अगर मैं यहाँ पे ऐसा रख दूँ हाथ तो दिस इज अ ऑब्स्टिकल, शुगर आगे नहीं जाएगी। मैंने इसको निकाल दिया, शुगर आगे बढ़ गई, कंटिन्यूसली शुगर बन रही, कंटिन्यूसली यूज हो रही है, तो आपकी शुगर बढ़ी हुई नहीं आएगी। ये बहुत सिंपल भाषा में मैंने बात किया है। अभी मुझे समय थोड़ा कम है, 5 चीज़ें आप ध्यान में रखिएगा आपकी अच्छी फैमिली को संभालने के लिए। सबसे पहले जो रेगुलर चाय आप पीते हैं उसको आप ग्रीन टी या टी विदाउट मिल्क, इस पर आप ट्रांसफर होना चाहिए। दूसरा, नमक जो है आपका रेगुलर टाटा नमक की जगह सेंधा नमक इसको बोला जाता है, बिकॉज हमारी बॉडी बाई डिफॉल्ट अल्कलाइन है, 7.4 pH का है। तो टाटा नमक की जगह आपको या आयोडाइज नमक की जगह सेंधो नमक जो बोला जाता है उसका इस्तेमाल करना चाहिए आपने। तीसरा, अगर आप लोग शुगर ले रहे हैं तो उसकी जगह आप गुड़ का इस्तेमाल करें जो ब्लैकिश होता है, जो अल्कलाइन है, शुगर एसिड होता है। फिर जो तेल है उसको आपको चेंज करना है, जो मैंने बताया अल्फा कार्बोहाइड्रेट, यहाँ पे जिसमें इन्हीं अदर बाकी सोयाबीन, सनफ्लावर, सफोला, ग्राउंडनट्स, सरसों का तेल जो बहुत ज़्यादा मात्रा में खाया जाता है, दे आर इम्यूनोसप्रेसेंट एंड कार्सिनोजेनिक। आपकी इम्यूनिटी खत्म हो जाती है, इसलिए आपको दिक्कतें आती हैं। उसकी जगह अल्फा कार्बोहाइड्रेट मैंने आपको बताया। और सबसे ज़्यादा चीज़ जो हमारे भारत में घर घर में यूज होती है दूध के बारे में जो मैंने लिखा है इसमें
उसमें दूध के जो बाय प्रोडक्ट है, उसमें बच्चों को आपको घी और सफ़ेद मक्खन काफ़ी प्रचुर मात्रा में दें कि घी और मक्खन जो है, वाइट मक्खन जिसको बोलते हैं, ये अल्कलाइन है और दूध एसिड है। तो ये चीज़ अगर आपने कर ली तो मुझे नहीं लगता कि किसी को कभी किसी डॉक्टर के पास जाने के बाद सेल्फ हीलिंग ना आए। आप ट्रीटमेंट तो सभी कराते हैं लेकिन हीलिंग नहीं हो पाता है। अगर हीलिंग फास्टर चाहिए, ये 5 पॉइंट अलग रखिए। और बहुत सिंपल सी बात है, अगर आप जो पानी पीते हैं, जो हमारा पुराना ज़माने में एक कंसेप्ट था, फिटकरी डाल के फिटकरी घुमा दीजिए, अल्कलाइन वाटर होता है उससे। इफ़ योर बॉडी इज अल्कलाइन यू विल नेवर हैव कैंसर इन योर लाइफ। ध्यान रखिए, ये साइंस बेस्ड चीज़ें हैं जिसको नोबेल प्राइजेस मिल चुके हैं, पूरे वर्ल्ड में फेमस है, लेकिन कहीं तो भी फाइंडिंग को कहीं तो भी सप्रेस कर दिया जाता है ताकि एक आम आदमी तक नहीं पहुँचे। और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं कि जो बताना चाहता हूँ। कभी प्रिंसिपल सर ने फिर कभी मौका दिया तो जरूर मैं आऊँगा, आपसे बात करूँगा। अभी प्लीज कम दिस साइड। नो, Hello sir, my name is Sinapreet and I am PGT English over here. My question is that you told us that diabetes and sugar are two different things. Yes. Okay, I'm fine with the same, but the scenario is sugar harmful too? Like Yes. my dad has diabetes as per doctors. yeah. So According to me, he is not diabetic. Okay? According to science, I am representing the science. Okay. so his hands shivers. Yeah. So I have some sort of problem regarding the same because I couldn't see that. It's hurtful to see that. So is he diabetic or he has sugar? I just don't know. One thing, he is a non-diabetic. He must be having the sugar. Okay, so what are the- Diabetes is not there in this world. I'm not talking now. I'm to Delhi to India, near to world. This is artificially made by this. If the person is diabetic, insulin production will be less than 2 unit. The C-peptide will be less than 0.8. But generally, this you are not finding with any one of. Even the small बच्चों, I do not know आपके यहाँ के कितने बच्चों को डायबिटीज है। हमने पिछले 4 महीने में एक सर्वे किया जिसमें करीब 127 बच्चे मेरे यहाँ आए हुए हैं। 127 बच्चों को इसलिए डायबिटीज करार दिया गया कि फर्स्ट टाइम उनकी शुगर 450-500 थी और कीटोसिस हो गया, उनको एडमिट करना पड़ा और उनको बोल दिया गया स्टेट डेथ सेंटेंस, जिंदगी भर ये बच्चे को डायबिटीज होगी, जिंदगी भर इसको इंसुलिन लेना पड़ेगा। जब उनके टेस्ट हमने कराए तो सारे टेस्ट उनके नॉर्मल निकले। सिर्फ 10 पेशेंट ऐसे थे जो रियली में डायबिटीज थे, वहाँ पे यस यू रिक्वायर, आपको इंसुलिन देना चाहिए, लेकिन सिर्फ 10 बच्चों को। कभी भी अगर न्यूली डायग्नोस अगर किसी को है तो उसके पहले उसने ये टेस्ट कराना, मुझे लगता है साइंस को लगता है कि ये मैंडेटरी है। उसके बाद आप कहीं ना कहीं आगे चलना चाहिए। उनके एक बार टेस्ट करा लीजिए बेटा। आई एम कॉन्फिडेंट दैट ही इज नॉट डायबिटिक। Okay, but sugar is harmful too, right? यस, एक्सेस तो हमेशा हार्मफुल रहेगी ना। And how can we minimize it? दैट इज टेस्ट सबसे पहले चाहिए। उसके बाद में सबसे पहले तो ऑयल चेंज करना है। उसके बाद में उसकी ग्रेविटी देखना है कि उनका इंसुलिन रेजिस्टेंस कितना। अभी क्या ट्रीटमेंट चालू है उनकी? He takes medicine only. मेडिसिन वाली ना। उनका HbA1c कितना होता रहता है? It reaches till 350, 400. वेरी हाई। आपको 140 मैक्सिमम चाहिए। फास्टिंग पोस्ट फास्टिंग 110 और पोस्ट में शुड भी 140। हमारी जो व्हीकल चलती है ना, देखिएगा उसमें 220 तक रहता है, लेकिन वो मार्किंग देता है कि 80 के ऊपर गाड़ी नहीं चलाना। अगर उसके बाद जाते तो आप जा सकते हैं, लेकिन एट अ कॉस्ट ऑफ लॉसेस। कॉस्ट ऑफ लॉसेस उसमें इंक्लूड है, तो उनकी जरूर टेस्ट करा लीजिए आप। और आई एम श्योर ही इज नॉट डायबिटिक। चाहता है कि आपका शुभ नाम बताइए जी। यहाँ आपके स्टूडेंट्स, आपके बच्चे पढ़ते हैं, मेरा बच्चा क्या नाम है उसका? मिष्टी अच्छा, और कौन सी क्लास में? 6 6th में। उसको डायबिटीज तो नहीं?
चलिए बहुत बढ़िया। Actually- आपके घर में किसको डायबिटीज है? मुझे आपको नहीं है डायबिटीज? हाँ, कॉम्प्लीमेंट्स फ्रॉम नहीं सर, एक्चुअली जब मेरी बेटी होने वाली थी तब मुझे डॉक्टरों ने बोला था कि मैं डायबिटिक थी। तब मेरा शुगर लेवल बढ़ा हुआ आ रहा था, तो उस दौरान उन्होंने इंसुलिन भी दिया था मुझे। ठीक है। बट उसके जन्म के बाद ठीक हो गया था, लगभग 3 साल ठीक रहा। उसके बाद फिर मुझे थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई, तब डायग्नोज हुआ कि मुझे दोबारा से है डायबिटीज। लेकिन मेरा मेन क्वेश्चन ये है कि क्या खाने को लेके अगर हम खाना खाते हैं तो उससे इतना ज़्यादा शुगर लेवल बढ़ जाता है कि हम अर्ली मॉर्निंग अगर फास्टिंग चेक करते हैं तो उसमें हमारा शुगर लेवल 200 क्रॉस कर जाए। एग्जैक्टली। खाने से शुगर बढ़ता है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन आपके पास 200 रुपए है, आपने खर्च कितने किए? कुछ नहीं किए, तो बढ़े हुए रहेंगे। शुगर आपकी बनेगी तब जब आप सुबह शाम खाना खाते हैं, दैट्स सोर्स ऑफ एनर्जी। तो कंटिन्यूसली अगर बरसात गिर रही है और आउटलेट उसका खुला है, अगर पानी नहीं जम रहा, तो आप एग्जिट पॉइंट से निकाल दीजिए। ऐसी शुगर कितनी भी बने, बनने में कोई दिक्कत नहीं है, उसका इस्तेमाल होना चाहिए, जिसके बारे में मैं बोल रहा हूँ। आपकी बॉडी इंसुलिन रेजिस्टेंस है, आपकी बॉडी पे इंसुलिन हद से ज़्यादा है, जो आपकी बॉडी का आप अगर कराएंगे तो यू विल फाइंड यू द हायर इंसुलिन इन योर बॉडी, बिकॉज इंसुलिन इज अ फैट स्टोरिंग हार्मोन। समझिए ये चीज़ें हमें कैसे पता लगेंगी कि हमारे अंदर इंसुलिन तो बन रहा है लेकिन वो यूज़ नहीं हो रहा? उसके लिए टेस्ट आपको करना है। खाने को लेके तो मुझे नहीं पता लगता कि हमारे अंदर नहीं, आप पेट भर खाइए ना, आप इतना नहीं, इतना चावल खाइए, कोई दिक्कत नहीं है। जो शुगर बन रही है उतना इस्तेमाल नहीं होगा तो वो बढ़िया हुआ आएगा, वो बट नेचुरल है। यही चीज़ तो समझ में वो कैसे पता लगेगा? आप टेस्ट तो कराइए ना। अगर रास्ते खुले, आपका जो ट्रांस फैटी एसिड्स की जो मैं बात कर रहा हूँ, दिस इज अ बेसिक, और उसके लिए IR एक होता है, इंसुलिन रेजिस्टेंस एक पैमाना होता है। IR का टेस्ट होता है। हाँ, वो IR का होमोसिस फॉर इंसुलिन रेजिस्टेंस, वो 1 के नीचे चाहिए, आपका कम से कम 4 होगा, आपका कम से कम 4 होगा। जब तक इंसुलिन रेजिस्टेंस खत्म नहीं होगा तब तक शुगर आपकी बढ़ती है। ठीक है, आप जरूर टेस्ट करा लीजिए और बिल्कुल ठीक हो जाएंगे आप, कोई इशू नहीं है इसमें। ले लीजिए हम लोगों से, वो करा लीजिएगा, आपके जो डॉक्टर्स हैं उनसे मिल लीजिएगा। अगर किसी कारण से आपको नहीं मिल पा रहा है, वो किसी कारण से अगर टेस्ट उनको भी नहीं समझ में आ रहे हैं, कोई रेमेडी नहीं है, तो डॉक्टर साहब ने एक बीड़ा उठाया है कि कंधे से कंधे मिला के डायबिटीज़ की तरफ हम दाद जाएंगे। तो इनके बाद इनके ऑफिस में नाम लिखा दीजिएगा, फ़ोन नंबर, और आपको वैसे ढेर सारी चीज़ें मिलेंगी। एक फॉर्म भी हमने लाया हुआ है, उसके अंदर आप लिख दीजिए, विल गिव यू द करेक्ट इन्फॉर्मेशन टू यू, है ना, लिखा हुआ रहेगा। बोलिए मैडम। सर नमस्ते। नमस्ते। मेरा नाम ममता है। सर आपने बोला कि फिटकरी डाल के पानी पीना चाहिए, लेकिन आजकल सबके घरों में RO लगा हुआ है। RO के बाद? RO के बाद मतलब RO का पानी पहले निकाल के फिर उसमें फिटकरी? हाँ जी, हाँ। RO क्या, उसमें तो गंदगी निकलेगी आपकी, आपका pH नहीं बदलता है। हमारी बाई डिफॉल्ट, हमारी जो साइंस के स्टूडेंट्स हैं, यहाँ मैं बताना चाहूँगा कि हमारी बॉडी 2-3 फैक्टर पे काम करती है। एक तो बॉडी टेम्परेचर, दैट इज 98.4, सबको मालूम है। सेकेंड है बॉडी का ब्लड pH, दैट इज 7.4। जो भी चीज़ हमारे शरीर में जाती है उसका एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन, इंटरैक्शन और एक्सक्रीशन होता है। चाहे आप दूध लीजिए, तेल लीजिए, साबुदाना खाइए, कुछ भी इसमें जाते हैं। इसको आगे लोअर पेप्टाइड्स में, लोअर इसकी मॉलिक्यूल में तोड़ने के लिए, जैसे हमको यहाँ से सीढ़ियों की जरूरत पड़ी, कार की जरूरत पड़ी, वैसे हमारे बॉडी के अंदर एंजाइम होते हैं, हर स्टेप को आगे लेके जाते हैं, उसको हम लोग एंजाइम बोलते हैं। और हमारे बॉडी के अंदर 75,000 एंजाइम्स हैं। अगर ये एंजाइम्स, अगर एसिडिक चीज़ खाने से, हम जैसे मैंने बताया कि हमारा खान पान भारत का वो कल्चरल है, इमोशनल है, ट्रेडिशनल मास साइकोलॉजी में जीते हैं, और अनफॉर्चुनेटली दे आर ऑल एसिडिक।
अगर एसिडिक चीज हम लोग खाएं, इवन नॉनवेज इज एसिडिक, इसका मॉलिक्यूल एसिडिक होते हैं। तो अगर हमारे एंजाइम्स अगर डीएक्टिवेट हो गए तो क्या होगा कि हमारी जो बायोकेमिस्ट्री वो कहीं ना कहीं वो रुक जाएगी, और तो जो अनप्रोसेस मॉलिक्यूल है हमारे बॉडी के अंदर बायोकेमिस्ट्री में, दैट विल वर्क एज ए टॉक्सिसिटी। जरूरी नहीं कि जहर खाए उसको टॉक्सिसिटी बोलते हैं, हर वो चीज जो हमारे शरीर के लिए नहीं बनी हुई है दैट इज नोन एज ए टॉक्सिसिटी। क्योंकि सेल से टिश्यू बना, टिश्यू से ऑर्गन बना, ऑर्गन से सिस्टम बना, सिस्टम से बॉडी बनी, और इस सब को बैलेंस जो करता है वो हमारे बॉडी के अंदर का वाटर कंटेंट। हमारे बॉडी के अंदर फीमेल्स में 75% पानी होता है, मेल में 60% होता है। आप मेरा एक उदाहरण और देना चाहूँगा कि हमारे यहाँ हमने देखे होंगे जो पानी के मछलियाँ होती हैं तो तैरती रहती हैं, अगर थोड़ा सा भी उसको ऑक्सीजन कम, बॉडी एसिडिक हुई कि वो मर जाती है। ऐसी हमारी बॉडी के अंदर हमारे जो जितने सेल हैं वो ऐसे ऐसे बिल्कुल मछलियों के जैसे तैर रहे हैं। अगर आपको एसिडिक पीएच होगा तो दैट विल स्टार्ट डाइंग। तो सेल आप जैसे मेरा सेल बिकम अ टिश्यू, ऑर्गन, सिस्टम, बॉडी, तो बॉडी आपकी धीरे धीरे डिटोरेट होती जाएगी और देन उसको हम लोग डिजीज बोलते हैं। तो यहाँ पे एक ऐसी भी फाइंडिंग है जो 1932 में फाइंड आउट, जिसको नोबेल प्राइज मिला है। वो कहते हैं कि अगर आपकी बॉडी अल्कलाइन रहे तो यू विल नेवर हैव अ कैंसर इन योर लाइफ। वो इशारा कर रही है कुछ सवाल पूछने के लिए, तो वो क्यों नहीं पूछ रही, उनको क्या तकलीफ है? मेरे को 2 साल से है, तो मैंने बहुत डॉक्टर को दिखाया, लेकिन मेरे को मतलब कोई इसका सोल्यूशन नहीं निकला। वो जैसे योगा भी करती हूँ, सुबह उठ के मॉर्निंग वॉक भी जाती हूँ मैं, लेकिन तब भी 280, 200 इतना मतलब हमेशा रहता ही है। तो वही मैंने कहा कि आपकी शुगर बढ़ी हुई है, डायबिटीज नहीं है। जो डायबिटीज का एक अनदेखा हुआ दृश्य जो हमारे माइंड में बैठा हुआ है, एक भ्रांति फैली है कि मुझे डायबिटीज हो गया, कल मेरा क्या होगा, उससे आप निकल जाइए। जो टेस्ट मैं अभी आपको कह रहा हूँ उसको टेस्ट करा लीजिएगा, हम आपकी पूरी मदद करेंगे और आई विल प्रूव। अगले साल सर 6 महीने का जैसा प्रोग्राम रखिएगा, जिन जिन लोगों ने बोला है डायबिटीज है वो क्या करते हैं, चलेगा? वो करवा रहे हैं, आप देखेंगे किसी को भी डायबिटीज है। बिल्कुल बिल्कुल आप दिमाग से निकाल दीजिए कि आपको डायबिटीज है। आप से अगर YouTube में अगर आप जाएं तो शायद आप पहली बार आपसे मिल रहा हूँ मैं, YouTube में डॉक्टर एस कुमार डालेंगे तो मेरे वीडियोस आएंगे। आज 6 करोड़ से ज़्यादा मेरे व्यूअर्स हैं इंडिया में, और रोज़ 3 लाख से प्लस लोग मेरा वीडियो देखते हैं। इसमें सिर्फ डायबिटीज़ के ये सारी चीज़ें आपको दिखेंगी, वो टेस्ट आपको देखेंगे, इतने सारे टेस्टिमोनियल आपको मिलेंगे। छोटे छोटे बच्चे ठीक हो गए हैं, बड़े लोगों को भी 6 महीने में। आज DSP आए थे रांची से। लेकिन सर पहले कहते थे ना कि घर में किसी को डायबिटीज है तभी किसी को, हमारे को फैमिली में होती है तभी होता है, लेकिन हमारी फैमिली में किसी को भी नहीं है। तो मैंने वही कहा ना कि जनरली किसी फैमिली में आप लकी थे। तो डायबिटीज तो वैसे भी नहीं है, शुगर आपकी बढ़ी है, ये डेफिनेशन मेरी, रक्त में बढ़ी हुई शुगर को डायबिटीज मत समझिए, ठीक है? और कोई है? चलिए, और सर मेरा नाम संध्या है। आपने कहा घी और बटर, व्हाइट बटर दे सकते हैं बच्चों जी हाँ। तो मिल्क नहीं देना चाहिए, तो उसका क्या सब्स्टिट्यूट, मतलब मिल्क बिल्कुल बंद कर दें बच्चों के लिए, या इजाजत है तो बात करो सर, समय में अरे आधा घंटा चलेगा। मुझे मैं सबसे फिर से सवाल पूछना चाहूँगा, कोई मुझे ऐसे लोग हाथ ऊपर करेंगे जिसका सवाल मैं पूछ रहा हूँ कि जिनको मालूम है कि दूध लेने से कैल्शियम हमारे शरीर में बढ़ता है, हाथ ऊपर करें। यूजुअली यही कहा जाता है कि कोई बात नहीं है, हम लोग फैमिली जैसे बात कर रहे हैं। कोई अरे आपने तो हाथ उठाए नहीं, क्या बात है? अरे अच्छा खाना खा के नहीं आए क्या? ये देखो अब मजा आएगा सर। चल साइंस क्या कहता है?
साइंस ये कहता है मिल्क नेवर गिव्स अ कैल्शियम, दिस एक्सक्रीट द कैल्शियम फ्रॉम द बॉडी कॉजेज ऑस्टियोपोरोसिस। चुप, सही बात है, एक्सप्लेन करता हूं, कोई दिक्कत। आज भारत में सबसे ज्यादा दूध बिकता है, हर घर में 2 लीटर 1 लीटर आता ही है। सबसे ज्यादा कैल्शियम की टैबलेट्स आज भारत में बिकती है, टनों से ट्रकों से बिकती है। तो ऑस्टियोपोरोसिस का नाम सुना होगा आप लोगों ने। व्हाट इज ऑस्टियोपोरोसिस? कैल्शियम की कमी। ऑस्टियोपोरोसिस इज नंबर 1 इन इंडिया। अब विरोधाभास आ गया। मेरे बेटे में को उसको भी यही प्रॉब्लम, कैल्शियम कम आया, उसकी रिपोर्ट्स में विटामिन D3 कम आया, तो उन्होंने कैल्शियम की टैबलेट्स और विटामिन D3 शॉट्स लगवा दी हैं, और उन्होंने कहा कैल्शियम के लिए दूध और ये डाइट दे दी। और आपने कहा मतलब दूध में इतना नहीं कैल्शियम है, तो फिर डॉक्टर खुद ही प्रिस्क्राइब कर रहे हैं कि दूध उसकी डाइट में ऐड करो। बेटा मैं डॉक्टर नहीं हूँ, प्रॉब्लम मेरे साथ ये, मैं हूँ विद्यार्थी, आपके जैसा स्टूडेंट हूँ, पहले भी था, आज भी हूँ, स्टूडेंट रहूँगा। इसको पढ़ना पड़ता है और साइंस को समझना पड़ता है। मैं किसी लॉबी या किसी के अगेंस्ट में नहीं हूँ, लेकिन जिस समाज में मैं रहता हूँ उस समाज के लिए एक सही डायरेक्शन देने का हक मुझे लगता है। मैं कहता हूँ कि मैं सच कहता हूँ तो कोई क्राइम नहीं है। सच ये है, जैसे मैंने आपको बताया, ओरली बताया। अब दूध क्यों नहीं पीना चाहिए, उससे क्या होता है, मैं आपको आधा घंटा है इसमें बताना चाहता हूँ। इसलिए जो मेरी बुक है जो मैंने लिखी है, इसका टाइटल है यस मिल्क अब नो मिल्क। यस मिल्क यानी अपनी माँ का दूध, अब नो मिल्क यानी उसके बाद में आपको अब दूध की जरूरत नहीं है। इस चीज को सबसे पहले समझने के लिए आपको प्रकृति को समझना पड़ेगा। कैन वी गो अगेंस्ट नेचर? नहीं ना। अगर हम लोग जाते हैं तो क्या होगा? विल हैव नेगेटिव इफेक्ट्स, बराबर है। अब नेचर के हिसाब से जितने प्राणियों ने इस पृथ्वी पे जन्म लिया है, दे आर वेल क्लासिफाइड बाय द बायोलॉजी, साइंस। रेप्टाइल, नॉन रेप्टाइल, वर्टेब्रा, नॉन वर्टेब्रा, ठीक है, रेंगने वाले, उड़ने वाले, ठीक है, जिनको हड्डियां हैं, बिना हड्डियां वाले, और कुछ ऐसे हैं जिनमें स्तन होता है, वी कॉल इट एज अ मैमल्स। और इस पृथ्वी पे देयर आर 4700 mammals on this earth. We hardly see few of them. गाय, भैंस, बकरी, बराबर। जो व्हेल मछली होती है ना, वो भी अपने बच्चों को दूध पिलाती है, स्तन होते हैं, वो भी हमारी फैमिली का। चमगादड़, जिसको बैट बोलते हैं, ये भी अपने बच्चों को दूध पिलाता है। तो वी कम इन द सेम फैमिली। अभी एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगा, Have you seen any mammal on this earth taking a milk of another mammal? Except humans. प्रकृति के opposite है। Yes. You are agreed? Everybody is agreed कि अगर हम इसके अगेंस्ट जाएंगे तो हमें दिक्कत होगी। सेकंड सवाल, आप बताएं अनीता जी ना, आपने इस पृथ्वी पे ऐसा कौन सा स्तनधारी देखा है जो दूसरे स्तनधारी का दूध पीते हुए पूरे जिंदगी पीता है? This is against nature. कभी आपने ये नहीं देखा होगा कि भैंस का बछड़ा, एक भैंस का बछड़ा दूसरी भैंस के बछड़े से। यहाँ से शुरुआत, सही है। So what is the concept of a milk? Concept of milk is very simple. When the bachu is born, the retinal intestine is immature, he cannot digest the solid milk like adult. But at the same time, bachu requires a nutrition supplement. So God has gifted that food in a liquid form from the respective mother. बच्चे ने दूध पिया, अन्न नलिका परिपक्व हुई, हमने सेमी सॉलिड फूड दिया, दांत आए, और जैसे ही रोटी सब्जी खाना चालू किया, milk vanishes from the mother's body because the purpose of food is completed. उसके बाद मिल्किंग कब आता है? सेकेंड प्रेगनेंसी, बिकॉज उसकी रिक्वायरमेंट है।
तो ये मुझे साइंस ये कहता है, प्रकृति कहती है, जिसका दूध उसकी माँ के लिए बना हुआ वो सफिशिएंट होता है। उसके बाद अगर आप देते हैं तो दूध उसके लिए पॉइजन है। वो कैसा पॉइजन है मैं आपसे आगे बात करता हूँ। सबसे पहले जितने होते हैं मैमल्स, इसकी सबकी क्या बोलना चाहिए, शरीर अलग अलग होता है। हमारे बच्चे का जन्म जब होता है तो उसका वजन कितने दिन में डबल होता है? सब हम लोग भी उसी में से निकले, कितने दिन में डबल होता है? जी नहीं, वजन डबल होने के लिए 6 महीने लगते हैं, 6 महीने लगते हैं। लेकिन गाय के बच्चे का जन्म होने के बाद उसका वजन 45 दिन में डबल होता है। ये मेजर डिफरेंस है। तो नेचुरली उसको 45 दिन में अगर उसको डबल करना तो उसका कॉम्पोजिशन अलग होगा, उसकी मांसपेशियां, उसकी हड्डियां सब अलग अलग होती है। अगर गाय के बछड़े को इंसान का दूध पिलाया जाए तो 10 दिन में उसकी डेथ हो जाती है। ये रिसर्च है, क्योंकि उसको 45 दिन में डालना है तो उसको कैल्शियम, मैग्नीशियम, फास्फोरस ये दूध में 4-5 गुना बड़ा और ज़्यादा होता है। उसमें 4-5 चीज़ें सबको मालूम है आपको, प्रोटीन, फैट, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन और मिनरल। सबसे पहले मैं प्रोटीन की बात करूँगा जो बहुत मिसअंडरस्टूड है। गाय के दूध में जो प्रोटीन की क्वांटिटी होती है वो 3.2% होती है 100 ml। मदर्स मिल्क में इट इज 1.1 मिल्क। मेजर डिफरेंस है, क्योंकि उसकी मांसपेशियां बड़ी हैं, उसको करना है तो उसको मांसपेशी के लिए ज़्यादा प्रोटीन चाहिए। एंड द टाइप ऑफ प्रोटीन विच यू गेट इन द काउ मिल्क इज अ कैसीन, जो 3.2% का 80% होता है, और हमारे माँ के दूध में 0.2% होता है। हमारे माँ प्रोटीन क्वांटिटी आपकी कम हो गई। अब जो भी प्रोटीन मॉलिक्यूल होता है, साइंस के अगर स्टूडेंट है तो आपको वो लोअर पेप्टाइड्स में टूटना चाहिए। प्रोटीन इज अ कंबाइंड अमीनो एसिड्स में, तो उसको तोड़ना है आपको, तो यू रिक्वायर स्पेसिफिक एंजाइम नोन एज रैनिन। इट इज फाउंड ओनली इन द 4th चैम्बर ऑफ अ काफ। गाय के बछड़े के पेट में 4 कप्पे होते हैं। इट इज फाउंड इन द 4th chamber of the cow. It is missing in the human body. It is missing in the human body. आप कैसे प्रोटीन एक्सेप्ट, ये तो साइंस है, इसको मैं नहीं बदल सकता, अब हम नहीं बदल सकते इसको। तो क्या होता है जब फॉरेन प्रोटीन बॉडी के अंदर जाता है हमारे, तो उसको एंटीजन एंटीबॉडीज का रिएक्शन, जैसे वैक्सीनेशन होता है। तो जैसे ही हमारी बॉडी में फॉरेन प्रोटीन जाता है तो बॉडी इज नॉट एक्सेप्टिंग, तो एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शंस होते हैं। सबसे पहले हमारे बॉडी बच्चे की इम्यूनिटी खत्म होती है, जिसके कारण थोड़ा सा भी अगर बरसात, अब बैठ जाइए, थोड़ा सा अब बैठ जाइए, जैसा भी अगर बरसात गिरी या कुछ हुआ, थोड़ा सा वेरिएशन आ गया, आप यहाँ से शिमला चले गए तो पता लगा खांसी हो गई, ठीक है, इम्यूनिटी डाउन हो गई। लेकिन जो स्लम में है, आप देखिएगा उनको कभी खांसी सर्दी नहीं होगी। सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम डॉक्टर्स के बच्चों को है, इतना केयर करते, इतना कहते, लंगोट भी रहेगी तो डेटॉल से मांगे सुनाते, सही है कि नहीं? तो इम्यूनिटी आपकी खत्म हो गई है, आप क्या करेंगे? तो दिस इज अ पार्ट ऑफ, और जैसे मैंने बताया कि अंदर जाके होता क्या, तो इसमें अमाइनो एसिड्स होते हैं, सिस्टीन और मेथेनॉइन। सो द व्हेन मिल्क एंटर्स इनटू द ह्यूमन बॉडी, दिस गेट्स कन्वर्टेड इनटू सल्फ्यूरिक एसिड। हमारे बॉडी का ब्लड पीएच है 7.4। अगर सल्फ्यूरिक एसिड, अगर हम लेबोरेटरी में है तो हम NaOH लाके हम एडजस्ट कर लेते हैं, अगर एसिडिक चीज़ है तो। अगर हमारी बॉडी में ये बना तो हमें क्या होगा, हमारी बॉडी की एंजाइम सारे कोलैप्स हो जाएंगे। तो अब बॉडी क्या करेगी? बॉडी को तो जीना है, आपको नहीं जीना है, वो क्या करे, भगवान को तो आपने दिया है। तो उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए वी रिक्वायर अल्कली, एंड अल्कली इज फाउंड इन द फॉर्म ऑफ कैल्शियम इन द बोन्स। तो जब जब हम दूध पीते हैं तब तब कैल्शियम इज इरोडेड फ्रॉम द फिक्स्ड डिपॉजिट ऑफ योर बोन्स, इज लीच्ड अवे, और आपका pH 7.4 करके हमारे भारत का हर बच्चा, हमारे घर का हर बच्चा, हमारे यहाँ हम लोग जिंदा है। एट द कॉस्ट ऑफ डिटोरेशन, एट द कॉस्ट ऑफ डिटोरेशन ऑफ द कैल्शियम। अगर आप सुबह एक गिलास पानी पीजिए, आपका यूरिन चेक करिएगा, यू विल नेवर फाइंड अ कैल्शियम इन द बोन्स, इन द यूरिन।
एक गिलास दूध पीजिएगा, उसके अंदर आपको कैल्शियम मॉलिक्यूल आपको मिलेगा। वेरी सिंपल, किसी के पास जाने की जरूरत नहीं, कोई करने की जरूरत नहीं। एंड लेट मी टेल यू, हाफ ऑफ द वर्ल्ड इज नॉट ड्रिंकिंग द मिल्क. Half of the world is not drinking. If you go to the Southeast Asia, you will not find a single lady is suffering from osteoarthritis or the knee problem. मुझे बताइए, हमारे घर में ऐसी कोई भी लेडी बताइए जिसको घुटने का प्रॉब्लम ना हो, है? रैम्पटली है। और उसको हम लोग डॉक्टर को आपको दूध पिलाई। अगर बचपन से आपने दूध पिया है तो उसका कैल्शियम कहाँ गया भाई? जो आप एडिशनल आप 200 ml आप दूध पी के उससे कैल्शियम आपको मिलेगा। तो कंसेप्ट कुछ प्रॉब्लम नहीं है। हमारी जो प्रॉब्लम है, हमारी प्रॉब्लम है WHY। क्यों? हमारे यहाँ बच्चे कुछ सवाल पूछते तो हम दबा रहे चुप रहे। क्यूरियोसिटी, हमने भी क्यूरियोसिटी होना चाहिए। हम दूध पी रहे, हमारा कैल्शियम क्यों कम हो रहा है? हमें क्यों टैबलेट की जरूरत पड़ रही है? हमें कि आज हमारे यहाँ हर लेडी हीमोग्लोबिन कम है, सब एनीमिया कहला जाता है, क्योंकि हमारे खान पान में सफिशिएंट मात्रा में कैल्शियम और आयरन पाया जाता है। लेकिन जब बाहर का कैल्शियम लेते हैं तो इनसॉल्युबल जो कैल्शियम है वो आयरन से मिलके इनसॉल्युबल फेरिक कैल्शियम कॉम्प्लेक्स बना लेता है, जिससे आपका हीमोग्लोबिन भी नहीं बढ़ता है। आप दूध बंद कर दीजिए, आपका हीमोग्लोबिन बढ़ जाएगा। आप दूध बंद कर दीजिए, आपका सीरम कैल्शियम बढ़ जाएगा। तो बताने की जरूरत, ये साइंस है, इज इंटरप्रिटेशन ऑफ द साइंस। तो कहने का मतलब हमारी सारी प्रॉब्लम हमारे रसोई घर से, सोल्यूशन रसोई घर से। छोटे बच्चों को जो डायबिटीज हो रही है, दैट इज बिकॉज ऑफ द काउ मिल्क। जिनको छोटे बच्चों के, आप देखेंगे छोटे बच्चे बचपन में बहुत दूध पीते हैं, उसके अंदर जैसे एक अमाइनो एसिड हमारे यहाँ पाया जाता है, उसमें GRF करके हार्मोन मिलता है जो रिसेंबल्स विद आवर इंसुलिन, 86 मॉलिक्यूल, ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन बोलते हैं उसको। और जब हम लोग पीते हैं, दूध के साथ जाता है, तो बॉडी इज नॉट एबल टू आइडेंटिफाई कि इंसुलिन कौन सा है और बाहर का कौन सा है। So they want to protect their own body, so that is known as autoimmunity. डॉक्टर बोलते हैं ऑटो इम्यून डिजीज हो गई है, इसलिए आपके बच्चे को हो गया। ये ऑटोइम्यून क्यों है? बुक्स के अंदर सारी पब्लिश है, स्टडीज पब्लिश है, हजारों स्टडीज पब्लिश है, जिसकी मैंने इस किताब में सारे वर्ल्ड के रेफरेंसेस कोट किए पेज के साथ में। और जहाँ जहाँ दूध ज़्यादा पाया जाता है, वहाँ वहाँ छोटे बच्चों को डायबिटीज बहुत ज़्यादा है। इससे इतना ही नहीं, इससे कैंसर होता है, इससे अब किडनी खराब हो रही है। दूध के 2-3 चीज और बताओ जो आपसे रिलेटेड है। एग्जाम के जमाने में जो चलती है, तो हम लोग क्या बोलते हैं, बच्चों को दूध पिलाते हैं। सही है ना? घर घर की कहानी है तो, अरे भाई पी ले, सुबह ऐसा सवाल नहीं, बचपन से पिलाते हैं। बट हमारे जो ब्रेन को डेवलप करने के लिए बहुत लोगों को मालूम है, एक ओमेगा 3 का नाम आता है। इट इज वेरी गुड फॉर ब्रेन डेवलपमेंट। इट इज वेरी रिच इन आवर मदर मिल्क, बट इट इज जीरो इन द काउ मिल्क। क्योंकि उनको आईक्यू नहीं है, ब्रेन जरूर है, आईक्यू नहीं। अब हम बच्चे को बेचारे को मार पीट के बोले ये नंबर आ जाना, ओमेगा 3 ले बड़ा मिल जाए। तीसरा, आज मैं स्टेज पे खड़ा था, 10 बच्चियों में से 50% को चश्मे लगे थे। हमारे वही कैमरे, इसका कारण क्या है? इनको बहुत दूध पिलाया गया बच्चे, आप पूछ लीजिए। तो इसका कारण क्या है? हमारा जो रेटिना होता है ना, उसको बनाने के लिए हमको टॉरिन नाम का एक अमाइनो एसिड लगता है, टॉरिन। इट इज वेरी रिच इन आवर मदर मिल्क, इट इज मिसिंग इन द काउ मिल्क। तो ऐसी एक नहीं, हजार चीजें हैं। आप आधी रात बैठे रहेंगे, ऐसे ही चलता रहेगा। नहीं, नो मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट एक्सेप्ट घी एंड व्हाइट बटर। कृष्ण को क्या कहा गया है बताएंगे आप? किसी को बोले? पक्का दूध छोड़ तो नहीं बोला ना?
कृष्ण जी को भी मालूम था कि ये अच्छा है, अल्कलाइन है, वो खाते थे। अब हम भी ये बोल रहे कि आप खाइए, बट मॉइस्चराइज नहीं है, इज अ फुल ऑफ ट्रांस फैटी एसिड, बराबर है। और एक किंवदंती है, किंवदंतियां हमारे भारत में चलती थी। पुराने जमाने में भारत में दूध की नदियां बहती थी, सुनिए ना भाई, मापे खाते थे लोग, दूध नहीं देते थे, इसलिए दूध की नदियां बहती थी। सही है, चलिए कोई बात नहीं। तो कहने का मतलब, अगर आपकी बॉडी एसिडिक है तो आपको बहुत सारे प्रॉब्लम आएंगे। आपकी अल्कलाइन है, मुझे नहीं लगता बॉडी की सेल्फ हीलिंग जो प्रोसेस है वो एकदम स्ट्रांग हो जाती है। तो दूध के बारे में मेरा काम कहना है, मानना नहीं मानना ये आपका काम है, मैं किसी के अगेंस्ट में नहीं बोलूँगा। देखिएगा कि जब हम सिग्नल पे जाते हैं तो सिग्नल मिलते हैं आपको, रेड, येलो और ग्रीन, ये सिग्नलिंग है। अगर आपको लगता है कि आपके बच्चों को दूध पिलाना है तो आप क्रॉस करिए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको लगता है कि रुक जाना है तो रुक जाइए, ग्रीन है आप रुक जाएंगे तो फायदा आपके परिवार को होगा, आपके बच्चों को होगा। और ये सदियों से चला आ रहा है, मेरे बोलने से नहीं बदलेगा। यहाँ साइंस के स्टूडेंट्स हैं, न्यूटन्स लॉ सबने पढ़ा है, तो क्या न्यूटन के पहले फल नीचे नहीं गिरते थे? गिरते थे ना। लेकिन ही एज अ साइंटिस्ट, एज ए ग्रेविटेशनल फोर्स इसने कन्विंस किया कि नहीं, ये ग्रेविटेशनल फोर्स है, इसके लिए ये। तो मेरे बोलने से साइंस नहीं बदलेगा, मेरे बोलने से कोई भी इंसान नहीं से, ये आपको करना है, आपको समझना है। हमारे भारत की परंपरा है, पढ़ो, समझो और करो। पढ़ने की बात है तो आप सो जाइए, आपको बुक्स पढ़ना है, सर को मैंने बुक दी है, किसी को और भी चाहिए तो हमारे सेंटर से ले सकते हैं। ये बुक्स मेरे यहाँ फ्री ऑफ कॉस्ट होती है, क्योंकि विद्या जो है शायद मैं नहीं बेचना चाहता हूँ। जो मेरी बुक्स हैं वो मेरे यहाँ ऑफिस में फ्रीली अवेलेबल है, अगर आपको आते हैं लेते हैं तो बुक्स आपको मिल सकते हैं। बोलिए बेटा, आपको ही बोला जाए। इम्यूनिटी बहुत ही वीक होती है। बिल्कुल सही बोला Yes, sir. तो सर जैसे मेरे बच्चे को माँ का दूध नहीं दिया, हाँ। सर उनकी इम्यूनिटी वाकई में वीक है, तो उसके है ना? लिए क्या करें? उसके लिए एक तो सबसे पहले अभी दूध तो पिला, कितना दूध आता है आपके घर में? सर हमारी जॉइंट फैमिली है तो 14 लीटर आता है। क्या बात है। चलिए कोई बात नहीं बेटा। देखिए आपके फैमिली के लोग माने या ना माने मुझे नहीं मालूम है, लेकिन आप थोड़ा सा डिटैच हो जाएंगे उनसे, क्योंकि अगर आपके फैमिली को मानना है तो मुझसे मिलना पड़ेगा। आप कितना भी सिर फोड़ लो, समझने वाले नहीं। मदर इन लॉ सर, उनको मतलब बहुत ज़्यादा शुगर रहता है। हाँ। ये जैसे सर 500 400 ऐसे चलता रहता है सर, 300, और उनको सुबह शाम दोनों जो है दोनों टाइम सर इंसुलिन लगती है, 22 और शाम को 18। बट सर वो टहलना नहीं, जब भी डॉक्टर बोलते हैं आप टहलिए, वो टहलना नहीं चाहते हैं। कैसे टहलेगा? उनका वेट ज़्यादा है, इंसुलिन रेजिस्टेंस है, उनको एनर्जी नहीं है। भाई शुगर बढ़ी है, शुगर का काम। आपका एजुकेशन क्या है बेटा? सर मैंने एमकॉम के। देखिए ये लाइट क्यों लगे हैं हमारे यहाँ पे? हाँ? रोशनी क्यों चाहिए हमें? क्योंकि अंधेरा हो जाएगा, बराबर। अंधेरे में नहीं बैठ सकते। हमने इसको लगाया रोशनी की हमारी नीड। अगर हमारी बॉडी में इंसुलिन बन रही है, हमारी बॉडी में सब बन रहा है, तो हम इंसुलिन क्यों ले? लेकिन उसके पहले टेस्ट तो करना पड़ेगा ना। सर टेस्ट तो हर मंथ होते रहते हैं, हर 3 मंथ में बिल्कुल करिए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो टेस्ट मैंने बोले वो आपने किए नहीं, क्योंकि मालूम नहीं है। आप एक बार कराइए और उनको मेरा मैसेज दीजिए कि डॉक्टर साहब लेते हैं, उन्होंने कहा कि आपको डायबिटीज़ नहीं है। समझते मेरी बात? रक्त में बड़ी हुई शुगर को डायबिटीज़ नहीं कहते। उनके लिए जो एक कोलेस्ट्रम करके आता है जो होता वो दिया जाए तो इम्यूनिटी बिल्डअप हो जाती है, जो हम लोग के पास होता है। आपको भी आपको ऐसा लगे तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। जी हाँ, बच्चों के लिए। और एक छोटी सी चीज़ जाते जाते हमारे यहाँ टीवी पे डाइटिशियंस या नुक्कड़ नुक्कड़ पे आपने देखा होगा कि स्प्राउटेड चीज़ें मिलती हैं। कितने लोग स्प्राउटेड खाते हैं यार? अरे हाथ तो उठा कर यार सब। हाँ, ये चलन है।
इसका कारण एक बताता हूँ मैं। 2 बच्चे इधर आ जाए बेटा, तो कोई 2 बच्चे आ जाओ, आ जाओ 2 बच्चे लोग। आप इनसे आपको एक सवाल पूछना है। सड़क पे 10 भेड़ चल रही, बराबर, और थोड़ी देर जाने के बाद एक भेड़ ने रास्ता बदल दिया। आप इससे पूछना है कि कितनी भेड़ें बची अभी बची है। पूछो जरा क्या जवाब देते हैं। सड़क पे 10 भेड़ें चल रही, ठीक है, और एक भेड़ ने जाते जाते रास्ता बदल दिया, कितनी भेड़ें बची? 9। कितने बजी बेटा? 10। इसका करेक्ट आंसर है 1 भी नहीं। सब ऐसे भेड़ बकरी की चाल, ये भेड़ बकरी की चाल है। एक ने बदला, सब रास्ता बदल गया। एक ही है, लेकिन सब ने अपना रास्ता बदल दिया। तो इस रोड पे 1 भी नहीं बची, 0 बची। ठीक है बेटा, देखिए हम लोग जब पैदा होते हैं, भगवान ने हमको जन्म दिया, तो पूरा जो इन्वायरमेंट इज फुल ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। जब बच्चा जन्म लेता है तब पहले 72 घंटे तक उसकी इम्यूनिटी जो होती है वो पैदा नहीं होती, लेकिन 72 घंटे तक उसको सेफ तो करना है। तो भगवान ने क्या किया, उस माँ के स्तन से एक येलो तरह का चिपचिपा पदार्थ, तो इसलिए लोग बोलते हैं स्तनपान, जैसे ही वो स्तनपान करा। इट इज नॉट द मिल्क, इट इज कोलेस्ट्रॉल, जो बाहर 72 घंटे तक सेफ गार्ड करता है। इसलिए आप देखिएगा कि जो बच्चे आपके परिवार में आने वाले जो भी हैं, उनको बताइए कि स्तनपान जरूर कराएं। इट्स अ रेडीमेड इम्यूनिटी, 72 घंटे के बाद चलता है। तो हमारा जो पूरा नेचर है वो चल रहा है एनिमल किंगडम और प्लांट किंगडम से, दोनों से चलते चले जा रहा है। अब जो बीज होता है, बीज का जर्मिनेशन हुआ, जैसे ही वो बढ़ने लगा, अगर माइक्रो बैक्टीरिया ने उसमें अटैक कर दिया जो अनविजिबल होते हैं, तो मुझे बताइए क्या वो बीज एक झाड़ में परिवर्तित होगा? नहीं हो पाएगा ना। तो जैसे भगवान ने कोलेस्ट्रॉल दिया, वैसे ही जैसे ही जर्मिनेशन होता है, उसके अंदर बेंजोथायोडॉक्सिन नाम का एक पेस्टिसाइड्स डेवलप होता है। बेंजोथायोडॉक्सिन नाम, जैसे ही वो पैदा होता है तो उसके माइक्रो ऑर्गेनिज्म उस पर अटैक नहीं करते। सिंस इट इज अ पेस्टिसाइड, इट इज अ कार्सिनोजेनिक टू द ह्यूमन बॉडी। हमें जर्मिनेशन की भी कोई चीज नहीं खाना चाहिए अनलेस अनटिल आप उसको उबाल के डीएक्टिवेट नहीं करते हैं। समझिए? वो सवाल और जवाब क्वेश्चन साइंस में ही है, सिर्फ हमारी प्रॉब्लम है WHY। अगर मैं भी किसी जमाने में एक स्टूडेंट था, आपके जैसे ही बैठा था, किसी ने लेक्चर दिया और मैंने भी पूछने अपने आप से सवाल किए वाई, और शायद मैं डायस के इस साइड में हूँ, आप डायस के उस साइड में। मैं गुजारिश करूँगा कि आप अपने बच्चों को, अपने आप को WHY से दोस्ती कर लें। मुझे नहीं लगता कि कहीं आपको कहीं जाने की ज़रूरत है। उस ज़माने में तो कुछ बुक्स भी नहीं थी। आज तो आप 2 मिनट के अंदर आप जो मैंने बोला, आई कैन गारंटी यू कैन फाइंड ऑन द साइंस। आप डालिए बेंजोथायोडॉक्सिन, यू फाइंड एवरीथिंग यू कैन। फर्क इतना है कि थोड़ा सा क्यूरियोसिटी थी लाइफ की, और एक जीने का एक अलग अंदाज था हमारा। और उसमें चलिए, बेटी है मेरी डॉक्टर भाग्यश्री, शी नेवर ड्रैंक मिल्क इन हिज लाइफ। मेरी 2 बेटियां अमेरिका में हैं, जिनको हमने कभी दूध नहीं पिलाया। ठंडे प्रदेशों में जाके भी उनको कभी सर्दी खांसी नहीं हुई। हमारे रोशन जी हैं, इनके वाइफ ने और बच्चे ने प्रेगनेंसी में भी दूध नहीं पिया। उसकी हाइट आम आदमी के बच्चों से हाइट ज़्यादा है, लेयर है और स्टाउट है। तो ऐसे बहुत सारे रिसर्च भी किए जो इससे मेल खाते हैं। अभी चॉइस आपका है, मानो या ना मानो। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।